अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका शादरा में शादी वाला घर मैदान जंग बन गया। 25 से ज़ायद अफराद ने धावा बोल दिया, फायरिंग की गई, डंडे सोटों का इस्तेमाल किया गया। एक शख्स जान की बाजी हार गया जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए। इसके पीछे वजह तनाज़ा है क्या और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की, वो तमाम अहवाल बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर के इलाका शादरा जिया मूसा ईदगाह रोड पर मौजूद है, जहां पर शादी की तकरीब में एक जराइम पेशा गैंग की जानिब से हमला कर दिया जाता है। ना सिर्फ गोलियों का, डंडों का, सोटों का, मुक्कों का ज़्यादा ना इस्तेमाल किया जाता है और ये गैंग तकरीबन 9 के करीब अफराद को ज़ख्मी कर देता है और रिक्शा ड्राइवर जो यहाँ से गुजर रहा होता है, राहगीर, वो ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। ये वाक़या किस तरह से पेश आया, ये क्यों झगड़े की कैसे शुरुआत हुई और फिर देखते ही देखते इतने लोग कैसे ज़ख्मी हो गए और पुलिस ने अब तक इस वाक़े पर क्या कार्रवाई की है, हमारे साथ मोहम्मद शरीफ साहब मौजूद हैं जो इस फैमिली के सरबरा है। उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। बड़ा अफसोसनाक जो वाक़या है कि शादी दी तकरीब सी शरीफ साहब भाईजान आ रहे हैं शादी वाला सन, शादी वाल तो बेटी रुखसती करके भांजी दी ਤੁਹਾਡੀ शादी? मेरी बेटी है। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ बेटी दी शादी? मेरी बेटी है। अच्छा, ते अस्सी गड्डी है जो दरवाजे अगे लाई है। हाँ सही है। दरवाजे अगे लाई है ते अंदर बच्ची ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, फिर मेहमान जा रहे ने ते कुछ मेहमान पीछे सन। अच्छा, 2 मोटरसाइकिल ते आए ने लड़के। अच्छा, वन व्हीलिंग करते करते ठीक है। ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਜਕੱਲ वन व्हीलिंग वाले डकैती बिल्कुल मोबाइल ਹਾਂਜੀ छीन के ते निकल ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਜੁਰਮ ਚ ਹੀ ਆਂਦਾ ਵਨ ਵਿਲਿੰਗ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ, ਤੈਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬੱਚੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕੌਣ ਜਵਾਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 2 ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਚੋਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਅੱਛਾ, ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਹੈ ਪਠਾਨ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਠਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਥੋੜੀ ਹੱਥਾਪਾਈ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਗਿਆ ਉਧਰ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹ 3 125 ਆਏ ਨੇ ਲੜਕੇ, ਚੰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਡਕੈਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਗਿੱਛਿਆ। ਅੱਛਾ, ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਪੱਥਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਆ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਗਏ? ਫੌਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਡੰਡੇ ਡੁੰਡੇ ਲੈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਫਰਦ ਕਿੱਡੇ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, 2-4 ਫਰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਚੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਨੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਚਲਾਈ ਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 40 ਤੋਂ 30 ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਫਰਾਦ ਹੋਣਗੇ ਪਠਾਨ ਹੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ? ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਚ 6-7 ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਈਦਗਾਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਹਾਂ, ਚੈਂਬਰ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਚੈਂਬਰ। ਅੱਛਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ? ਚਲਾਈ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੋਲੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ, ਐਂ ਜੋ ਫਰਾਸ ਪੈਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਦੀਦ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਫਾਇਰ 5-6 ਵੱਜੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਜਣ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਏ, ਉਹਦੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ, ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਜਿਹਦੀ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਏ, ਮੇਓ ਹਸਪਤਾਲ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਤੀਜਾ, ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਟੁੱਟੀ ਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੇ 2 ਹੋਰ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਛੂ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਗਰਦਨ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਰਾਹਗੀਰ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤੀਕਰ ਮਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫਾਇਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਰਫਖਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਇੰਨੀ कम से कम 200-300 गोलियां ने चलाई। कितनी देर गोली चलाते रहे? तकरीबन
20 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਹੈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਥਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਹੈ ਹਾਂ। ਔਰ ਚੌਕੀ ਵੀ ਕਰੀਬ ਹਾਂਜੀ। ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਪੁਲਿਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ? ਫਾਇਰਿੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੁਸਲਸਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹਾਂਜੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ? ਭਾਈ ਜਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੁ ਤੇ ਮੌਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। 10 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਮੌਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਪਿਸਟਲ ਸੀ? ਜ਼ਾਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਫੜਿਆ ਥੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਈ ਤੜਾ ਤੜ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 1122 ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਿਆਕਤ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ? ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਕੂਏ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਥਾਣੇ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਲਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਬਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਤਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ? ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਲ ਸਾਂ। ਗੋਲੀ ਐ ਨਹੀਂ ਸਾਕਾ ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਤੀਕਰ ਗੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਲੱਗ ਰੰਗ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜ ਗਈ? ਉਹਦੇ ਵੱਜੀ, ਐ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਜੀ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਆ। ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ 1122 ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਮਦਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਣੇ? ਮਦਈ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਥਾਣੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਦਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ 15 ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 20 ਮਿੰਟ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੁਟੇਜ ਕਢਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਵੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਹੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੋਜ਼ਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵਹਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਚੈਂਬਰ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠਾ 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 ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਦੇ ਤੇ ਘਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂ, ਭਾਈ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਰੁਖਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਲ 'ਚ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੁਖਸ ਦੀ ਘਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਵਾਪਸ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੰਘ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸਨ ਨਾਲ, 20-25 ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਆਦਮੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਡੱਕਿਆ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡਕੈਤੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਸੂਰਪੁਰੇ। ਇੰਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਡਾਕੂ ਡੂਕੂ ਨਾ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਾਤਾਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ? ਲਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਬੱਚੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਪੁਲਿਸ? ਖੁਦ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੱਟੀ ਇਹ ਉਹ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਲਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਚੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਉੱਥੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਜਿਹਦੇ ਗੋਲੀ ਪੈਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ। ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਂਚ ਸਾਡਾ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੱਜ ਗਏ? ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ FIR ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ। ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੱਟ ਲਈ? ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਦਾ ਪਰਚਾ ਆ ਜਾਏਗਾ।
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ FIR ਕੱਟੀ ਗਈ। ਵਨ ਵਿਲਿੰਗ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਨ ਵਿਲਿੰਗ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਦੀ FIR ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਤਲ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੂਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਵਨ ਵਿਲਿੰਗ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਨ ਵਿਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ 2 ਪਰਚੇ ਜਾਂ 3 ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਨ ਵਿਲਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਪਰਚਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ FIR ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਘਰ। ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਐਵੇਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਨ ਵਿਲਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ। ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਊਟੀ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖੀ, ਨਾਕੇ ਪਰਲੇ ਉੱਥੇ ਈਦਗਾਹ ਰੋਡ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈਗੇ? ਹੁਣ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 2 ਬੰਦੇ ਅਲਬત્ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ? ਪਠਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਠਾਨ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੂਗਜ਼ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾੜੇ। ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਛਾੜੇ ਵਾਲੇ? ਪਠਾਣਾ ਖਵਾਨੀ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜੁਸਤਜੂ ਦਾ ਦੌੜ ਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨੇ। ਉਹ CCTV ਚ ਤੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ ਮੁਲਜ਼ਮ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਕੈਚ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਨ ਵਿਲਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਪਰਚਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, 9 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਨ ਵਿਲਿੰਗ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡੰਡੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਖੋਲ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਖੋਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? FIR ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਫਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਬਸ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਦਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਮਦਈ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਫਿਸਰ ਦਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈਜਾਨ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹੱਕ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੋਂ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਜਰਾਇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ, 1 ਟੀਮ 2 ਟੀਮ 3 ਟੀਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। CCTV ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਖੌਫ ਹੈ? ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਬਸ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਲੀ ਬਦਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਰਾਇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਕੂਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 32 ਚੌਂਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਰਾਹਗੀਰ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਅਮਾਨਤ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈਗਾ ਸੀ? ਸ਼ਾਦੀशुदा ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਫਿਰ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਰਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਗੋਲੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾ ਵੱਜ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ।
नाजरीन, इस वक्त हम जिया मूसा ईदगाह रोड पर मौजूद हैं, जो लाहौर के इलाका थाना शादरा की हदूद में आता है। और यहाँ पर चंद रोज़ कबल जंग का समा था। यहाँ पर एक ग्रुप जो है वो यहाँ से मोटरसाइकिलों पर आता है और इस रोड पर अंधाधुंध गोलियाँ बरसाई जाती हैं, जो ना सिर्फ इन फैक्ट्रियों को, कारखानों को लगती हैं, बल्कि यहाँ पर खड़े रिक्शे को भी लगती हैं। और मेन रोड है, बिल्कुल हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे इब्रार, ये पीछे मेन रोड शादरा है जो 25 नंबर स्टॉप की तरफ जा रहा है। वहाँ से एक रिक्शा ड्राइवर अपनी बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करके, कमाई करके घर की वापस दोबारा जा रहा था कि रास्ते में उसे भी गोलियां लगती हैं, वो ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। इनके भी 9 के करीब अफराद ज़ख्मी होते हैं। ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ, ये यहीं पर मौजूद थे, इनकी ज़ुबानी जानते। बड़ा अफसोसनाक जी वाक़या की एहो जिहा हो गया सी जिहड़ी जंग शुरू हो हाँ गई। जी, वाक़या ऐसा है कि ਸਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਬੇਟੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਆਏ ਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹਾਲ ਚੋਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਓਵਲ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। अच्छा, ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਪਠਾਨ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਕੇ, ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। कित्थों कित्थों फायरिंग? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ए पिछों? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹਦਾ ਖੰਭਾ अच्छा, ਨਹੀਂ कितने ਉਲਟਿਆ। बंदे आए? ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦੇ ਉਹੀ 25-30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਿਖਾਈ ਦਿਓ। ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਹਲੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚੱਲਣੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ ਗੋਲੀ? ਸਾਰੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੱਜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਾਖ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੰਦਾਧੁੰਦ ਵੱਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਫਿਰ? ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਧਰ। ਅਸੀਂ ਕਿ 10 ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਭਤੀਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਰਕਸ਼ੇ ਡਰਾਈਵਰ को ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ? ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੋਬੀ ਦਾ ਬਚਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਈ ਸਲਾਬ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖੜਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸੀ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ? ਪਠਾਨ ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆ ਚਮਕੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਮਕੁੰਡੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਕਲੋਨੀ 'ਚ? ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਠੀਕ 2 ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਡਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸਾਰਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਲੂ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਫਿਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਦਰਾ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਚਮਕ ਕਲੋਨੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਜਰਾਇਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਉਹ ਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਗਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਨੀਅਤ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉੱਥੋਂ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਸੀ ਟੋਟਲ ਪਠਾਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋ ਭਾਈ? ਇੱਧਰ ਆਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਆਓ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਛੂ ਕੇ ਵੱਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਲਾਦਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਦੀ? ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਭਤੀਜੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚਾਚੂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ? ਉਹ ਬਸ ਯਕਦਮ ਉਹ ਬਿਲਿੰਗ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੜਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆਪਸ ਚ। ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਪਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੱਥਾਂ ਪਾਈ ਹੋਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਗਾਲੋ ਗੁਲੀ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 10-12 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੱਥਾਂ ਪਾਈ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਤੀਜੀ ਦਫਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ 20-25 ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਸਨ, ਮੋਹ ਸਨ। ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਹ ਗਈ ਚਾਰਾ ਕੇ ਗਾਤੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਗੋਲੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਾਂ ਪਰ ਪੈਰ ਪਰ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ। ਬਸ
बस ते मुलजम गिरफ्तार होए ने? मुलजम सुनिया गया कि दो पकड़े गए। अच्छा हाँ जी, ठीक है, पुलिस ठीक कार्रवाई कर नहीं रही। पुलिस माशाल्लाह साढ़े नाल गुड। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? नहीं पर्चा हो गया है एक ਸਾਰੇ ते- ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ? तीसरा मेरा ख्याल है कि साडा रिजल्ट आना है हले, हाँ वो भी हो जाएगा क्योंकि उन्होंने खुद तफ्तीशी गया उत्थे बच्चों ने लैके मियाँ अस्पताल। नाज़रीन, इधर- अजान हो रही है, उसके बाद तफसीलात से मजीद आगाह करते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या किस तरह से पेश आए। नाज़रीन, जिस वक्त यहाँ पर एक गैंग की जानिब से गोलियां बरसाई जा रही थी, ऐनी शाहिदीन हैं जो शादी की तकरीब से वापस आए थे। उन्होंने क्या कुछ देखा सुना है कि 3 मुलजमान जो हैं वो अपनी मोटरसाइकिलें भी यहाँ पर छोड़कर चले गए। और ये फुटेजेस भी आप देख सकते हैं जो हमारी टीवी की स्क्रीन पर चल रही हैं कि किस तरह से एक गैंग जो है वो अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए यहाँ पर आ रहा है। ये कुछ नौजवान हैं, इनकी ज़ुबानी जानते हैं। इन्होंने ये सारा वाक़या देखा, किस तरह से ये गोलियां बरसाई जाती रही हैं और इसके पीछे वजह सिर्फ मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग से मना करनी थी या कुछ और वजूहात थी। भाई इंज लग रहा है जिमें तो कोई दुश्मनी है पुरानी, जिमें वो गोलियां चला नहीं रहे सर, हैं। दुश्मनी वगैरह कोई भी नहीं है। वो हम शादी से वापस आए हैं, सिस्टर की शादी थी, वापस आके इधर खड़े हुए हैं तो वन व्हीलिंग करते हुए कभी इधर को राउंड कर रहे हैं, कभी इधर को राउंड कर रहे हैं। जब इधर से वापस आने लगे हैं तो इधर रोका है मामू ने उन्हें कि भाई इधर व्हीलिंग ना करो, कोई बच्चा अंदर से निकल जाता है, कोई अभी नबी हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है? वो आगे से बदमाशी करने लग गए हैं। फिर उन्हें हमने रोका है, फिर भी नहीं मना हुए, फिर आगे से हाथापाई करने लग गए हैं मामू के साथ। फिर बाद में उन्होंने कॉल किया लड़कों को, लड़के आ गए हैं। लड़कों ने आते सारे किसी की बातचीत नहीं सुनी, कोई बात वगैरह नहीं की, आते सारे उन्हें हमला कर दिया। अच्छा, तो फिर दोबारा उन्होंने लड़कों को कॉल किया, वो वाइपन लेके आए, उधर से भागते हुए आए वाइपन के साथ। तो आते सारे उन्होंने फायरिंग कर दी है। कुछ हमारे अफराद इधर खड़े हुए थे जो मज़ीद ज़ख्मी हुए हैं, ज़्यादा जिन्हें चोट लगी है, कहीं के पाँव में से आर पार हो गया गोली, कहीं के गर्दन को छू गया जैसा कि मामू वगैरह, ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं हमारे अफराद। अच्छा। तो हमारे मज़ीद इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ मिलना ये चाहिए। कौन लोग हैं? आप बता रहे थे कि यहाँ पे जो है वो निशानात ये भी हैं पीछे- गोलियों ये के। पीछे ये बैक पीछे साइड है। आपका घर है ये जिस जी जहाँ पे ये खड़े हैं? हमारा घर है जी। अच्छा, यहाँ पे लगी हैं गोलियां? जी इधर भी लगे हैं, वो सामने पाइप भी। जो हमारे ऊपर इतने अफराद खड़े हुए थे उन्होंने खवातीन सुना है कुछ ऊपर खड़ी खवातीन थी। खड़ी हुई थी बिल्कुल, उन्होंने आते सारी उन पे ही फायर बरसाना शुरू कर दिया। उन पे भी गोलियां उन पे चलाई? भी गोलियां वो चलाई पीछे हट गए थे? जी जी पीछे हट गए बचत थे। हो गई जी उनकी। जी। बाकी कितने लोग जख्मी हुए हैं? कौन कौन है बाकी जख्मी? हमारे में से तकरीबन 9 से 10 लोग जख्मी हैं, बाकी हॉस्पिटल में हैं। अच्छा, उधर ही कौन कौन है आपके? मामू के बेटे हैं वो। अच्छा, जी, सारे ही सारे जो जख्मी हैं? जी, जी। गोलियां कितने को लगी हैं? गोलियों को तकरीबन हमारे 7 जनों को गोलियां लगी हुई हैं। अच्छा, और पुलिस ने पर्चा नहीं दर्ज किया अभी तक? अभी आपका? तक कोई कुछ समझ नहीं आ रही हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे। बस देखें अब क्या हमारे हक में फैसला आता है, क्या हमें इंसाफ मिलता है। अभी तक हमें कोई सिचुएशन नहीं समझ आ रही यहाँ पे। अच्छा, नहीं जी, समझ आ रही नहीं है समझ अभी आ तक। रहा है। तो पुलिस आपके मामू तो कह रहे हैं ठीक ताउन कर रही है? नहीं वो आए थे, मौके पे आए हैं, बातचीत वगैरह की है, फुटेज वगैरह उन्होंने निकलवाई है, फुटेज वगैरह निकाल के सारी ले गए। मुलजमान की शनाख्त हो गई है? कौन है? शनाख्त अभी तक ये नहीं हमें मालूम हुआ शनाख्त हुई है कि नहीं। नहीं, वो बता रहे फुटेज हैं में कि शनाख्त पुलिस- की है उन्हें, जी हाँ, जी शनाख्त पुलिस बिल्कुल ने ही की है, वाजिया नजर आ रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, ये जी। कौन लोग हैं? अब तो पता लगा होगा कोई? ये पीछे के समझ पता चलने में आया, ये चमन कॉलोनी के लोग हैं, शाड़े हैं, पठान है ये। अच्छा, ये उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने हमला जी, किया? जी, जी। और बस ये इस वजह से जी, वन जी। व्हीलिंग करने ये से वन मना- व्हीलिंग करने से मना किया बस हमने। अच्छा, तो 1 to 5 भी यहाँ पे छोड़ 1 देते? to 5 भी 3 1 to 5 छोड़ के गए थे। अच्छा, वो राहगीर बेचारा रिक्शे वाला उधर से फायर चलाते हुए आया, बर्फ खाने के पास खड़ा हुआ था, उसे भी फायर लग गया बेफजूल में। 3 बच्चे हैं, 3 बेटियां उसकी और 1 बेटा है। वो तो वो कूच कर गया बेचारा- जानने जी, पानी बिल्कुल, से, दुनिया में ही नहीं रहा। बिल्कुल। उसके भाई ने पर्चा कराया? जी जी सही है। अब आप कहते हैं इंसाफ होना चाहिए? जी जी इंसाफ होना तो चाहिए। पहले भी इस तरह के वाकयात यहाँ पे होते रहते भाई हैं आपके बाजार में? हमारी किसी के साथ पहली बात तो यह दुश्मनदारी है नहीं ही नहीं, नहीं। आपकी नहीं, वैसे जी, आपके जी। मोहल्ले में इलाके में ये होता रहता आते है? हैं अक्सर, पहले भी आते थे गन पॉइंट पे, किसी का फोन छीन के ले गया, किसी के पर्स छीन के ले गए, कई वकूए हमने अपनी आंखों के सामने देखे हैं। अच्छा, वारदातें करते जी हैं? वारदात है, तब ये रोड बनानी हुआ था, ये रोड तो अब बनाया ना, अब स्पीड ब्रेकर भी इधर कोई नहीं है, जो भी आता है हरकत करता निकल जाता है, जो भी आता है वो- जो भी आता है वो यहाँ पर फायरिंग करता है, फायरिंग निकल करता जाता है, निकल तेजी जाता के है, साथ? तेजी के साथ। अच्छा, इस रोड का फिर बनने के बाद इस्तेमाल हो रहा है वन जी जी व्हीलिंग पे? बिल्कुल, वन व्हीलिंग पे इस्तेमाल और हो रहा है। क्राइम भी हो रहा है यहाँ पर? क्राइम भी हो रहा है। तो पुलिस तो करीब ही थाना है, पुलिस चौकी भी करीब ही है, फिर भी कुछ आए हैं, वो आए हैं, टाइम पे पहुंचे हैं, तकरीबन से 5 से 7 मिनट बाद इधर मौजूद हो गए थे।
वो उधर फायर लगा हुआ था जो उनसे लेकिन एम्बुलेंस कहते हैं 20 मिनट तक गोलियां चलती रही हैं। चलती रही हैं बिल्कुल। वो उसके तकरीबन चलने के बाद चलने आए? के बाद 5-7 मिनट बाद आए हैं अच्छा, मतलब आधे घंटे जी। बाद 1 वारदात फाइव की के। कॉल जो सी होती है आपको पता है, जल्दी वो सुनते नहीं है। हाँ, वो आते हैं अपने टाइम से, अपनी मर्जी से उन्होंने आना होता है। जब वो आ जाते हैं फिर अपनी अफरा तफरी मचाते हैं, वो भी कर लो वो भी कर लो, फिर करके फिर जो आपको पता है उनकी हरकतें होती हैं। हाँ। प्रोटोकॉल नहीं यानी कि मिलता उनकी तरफ से सही ना। अभी तक समझ आई है मुसलमान पकड़े हैं कि नहीं पकड़े, कौन है कौन नहीं, अभी तक कुछ हमें समझ नहीं लगी। कुछ नहीं समझ लग रही है। जाहिर सी बात है यार नाजरीन, यहाँ पर जो कमज़ोर लोग होते हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आती। एक और भाई हैं, वो ऐनी शाहिद हैं और इस बारे में मज़ीद हमें बता रहे थे ऑफ कैमरा जब ऑन नहीं था। तो भाई ये कौन लोग हैं, क्या शनाख्त ये हुई पीछे इनकी? से है, पछाड़े लोग हैं, पठान है ये, ठीक अच्छा। है। इनका काम ही है चोरी डकैतियाँ करने, वारदातें करने, गन पे बंदे को लूटना, ठीक है। वन विलिंग करना इनका काम, असल मकसद इनका यही है। ये पीछे जाएंगे ना चमकनी वाली साइड पे, चमकनी वाली साइड पे सारा ये सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। सही है। इन्होंने समझ लो पूरा इलाका समझ लो उन्होंने अपनी दहशत में बना रखा हुआ है। किसी को बंदे को बंदा ही समझते, इनको नहीं पता कि ये कि इनके माएँ बहनें जा रही हैं। आसरा भी नहीं किया इन्होंने हर एक जगह पे। ये मोहल्ला 2 दिन हो गया इस मोहल्ले में, आज समझ लो खौफ और आस का आलम फैना हुआ है। अच्छा, मतलब 2 दिन मोहल्ले में लोग कोई पता ही बाहर नहीं, बच्चे निकले। नहीं घर से बाहर नहीं करे, खाना लोग अपना खाना खाने के लिए लेने के जा नहीं बाजार नहीं जा पा रहे। रास्ता उन्होंने दूसरा इख्तियार कर लिया मोहल्लेदारों ने, दूसरा रास्ता दूसरा, इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि वो कह के भी गए हैं और जाते हुए ये कहे हम दोबारा फिर आएंगे, वो ये भी कहे कि हम दोबारा फिर आएंगे इधर। अच्छा, वो ये भी नाज़रीन, कह गए हैं। जो गैंगस्टर हैं वो यहाँ पर कह के गए इनको कि वो दोबारा फिर आएंगे। इस इधर वजह से इलाके में खौफ रास है और लोग जो जिनके साथ ये वाकया भी पेश आया वो भी दबे दबे अल्फाज में गुफ्तगू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है शरीफ लोग जो हैं वो डरते हैं कि कहीं पर उनको किसी किस्म का ख़तरा ना हो जाए। जिन्होंने 20 मिनट तक गोलियों की थरथराहट सुनी हो और अपने घर पर गोलियां चलते हुए देखी हों, उनका खौफजदा होना तो बनता है। 9 के करीब अफराद उसमें ज़ख्मी हो गए। शादरा पुलिस की जानिब से एक जो है वो 302 की दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया जो अमानत राहगीर ज़िंदगी की बाजी हारा, और उसके अलावा जो है वो 1 व्हीलिंग की दफ़ा के तहत सुना मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इनकी जानिब से भी दरख्वास्त दी गई है जिस पर मुकदमा इनके पास दर्ज मौके पे किया जाए। 3 बाइक्स थी। अच्छा। जो उनसे जब ये छोड़ के जब उन्होंने देखा ना कि ये काम इधर ये इतने बंदे जख्मी हो गए, ये ऐसे हो गया ऐसे हो गया, फिर ये अपनी बाइक्स वगैरह ऐसे ही छोड़ के ऐसे ही बैग ही भाग गए हैं ये सारा अच्छा, कुछ। तो फिर उनकी जो सी बाइक थी वो सारी शादरा जो से थाने वाले उनको रिसीव करवा दी थी हमने, उनको रिसीव करवा दी, पकड़वा दी थी। सही है। अब तक पुलिस ने कोई बंदा पकड़ा है? कोई नो डाउट पता नहीं है इस बात का, अभी नहीं पता। अभी नहीं पता इस क्या बात का। कहेंगे, क्या होना चाहिए, क्या हमें मुतालबा तो हमें करेंगे? अपनी नहीं पता है। हम तक हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ से आ जाते हैं। अभी भी शाम में 2 भाइयों को लेके आए हॉस्पिटल से, मैं दिन रात हमारी वहाँ पे जा रहे हैं। ज़ख्मियों को लेके ज़ख्मियों को लेके आ रहे हैं। ये चक्कर लगा हुआ है हमारा। ओए होए होए होए। नाज़रीन, ऐसी अफसोसनाक सूरत हाल है। दोबारा रुक करते हैं जो इस वाक़े के ऐनी शाहिद भी हैं और इनके भाई की बेटी की शादी थी आपकी? छोटा भाई है शरीफ, छोटे भाई, मोहम्मद शरीफ। हाँ। हाँ, तो ये कौन लोग हैं और कैसे अब तक पुलिस आपका FIR क्यों नहीं दर्ज कर रही? पता नहीं, हो जाएगी इंशाल्लाह वो भी। अच्छा, क्या कहते हमारी हैं? कार्रवाई बाकी है ना अभी। अच्छा, जब कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी तो हमारा भी हो जाएगा। अच्छा, इंशाल्लाह। FIR हो हाँ, जाएगी। वो हमें ये टाल मोल नहीं कर रहे, हाँ। सही कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जैसे वो कार्रवाई। रिजल्ट आ जाएंगे तो हमारा पर्चा भी हो जाएगा। सही है। जो भी बेहतर रहेगा वो दफात लगाएंगे तो वही। मजीद भाई बता रहे थे यहाँ पे बड़ा खौफ रहा ये फैला रहा है। हाँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा लोग अभी निकल भी ही नहीं रहे। अभी देखना क्या सन्नाटा है। 2 दिन से बिल्कुल यहाँ पे लोग नजर ही नहीं आए सिवाय हमारे अकेले। हम भी डर के बाहर निकलते रहे हैं कि दोबारा फिर ना आ जाए। वो कह के भी गए हैं आपको कि आएंगे दोबारा? बेटे ने बताया नहीं है कि हम दोबारा आएंगे। अच्छा, ये कह के गए? लेकिन पुलिस ने 2 दिन यहाँ पे नाके भी लगाए रखे। नाके भी लगाए रखे हैं। पुलिस की नफरी भी यहाँ पर तैनात 2 रही है। दिन मौजूद रही है। हाँ, और ये कोई इलाका गैर नहीं है नाज़रीन, ये लाहौर का इलाका लाहौर का शादरा है। शादरा। और शादरा की बिल्कुल मेन रोड के बिल्कुल करीब हम मौजूद हैं जिससे जिया मूसा जी हम सैयद को शादा ईदगाह रोड कहा जाता है इसे। और यहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश है। बेटा आप भी थे? जी, क्या देखा यहाँ पर? यही देखा था। उन्होंने को मना भी कर रहे थे, वो आए हैं, आते ही उन्होंने पकड़ा, मारने लग पड़े हैं सारों को। बात भी नहीं गई कोई भी, तो गए हैं वापस, फिर आए हैं, फिर उधर से गोलियों की बरसात शुरू की है। तो हम फिर आगे पीछे हुए हैं। फिर भी हमने अपने अजीज़ों को अंदर करते करते मेरे कज़न को एक बुलेट लगा, चाचू को भी लगे हैं, काफ़ी ज़ख्मी भी हैं हमारे जो हॉस्पिटल में हैं। तो पुलिस आई थी, तो उसके बाद फिर मैं भी हॉस्पिटल में गया था, मुझे भी चोट लगी थी, मुझे नहीं क्या पता लगा था। अच्छा, आपको भी चोट लगी? जी। सही है। पुलिस को बयान दिया? जी। क्या बताया आपने पुलिस को? ये बताया कि उन्होंने डंडों से वार किया। अच्छा जी। फिर उसके बाद नहीं था मुझे पता, मैं बेहोश हो गया था। अच्छा। हॉस्पिटल में जाए आँख खुली थी फिर। अच्छा, हॉस्पिटल में आँख खुली आपकी जी। जाके?
पुलिस को फिर बताया आपने कि ऐसे ऐसे लोग वो आए थे? मुंशी हॉस्पिटल में लेके गए थे बयान आके, तो फिर लेके वो चले गए, फिर उधर से हम पट्टियाँ वगैरह करवा के फिर घर आए हैं रात को। तब भी पुलिस काफ़ी ज़्यादा इधर ही थी, सीसीटीवी वाले लोग भी आए हुए थे, बड़े से बड़े पुलिस वाले आए थे काले डालों में, तो वो करते रहे हैं। तो उन्होंने हमें बच्चों को कहा था आप घर से बाहर ना आए, आप घर में रहे, घर में रहे। हाँ जी। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मारूफ कानूनदान रिजवान अफजल तारड़ साहब मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि ये जो मुकदमा का अंदराज करवाया गया है, इसमें कौन सी कानूनी पेचीदगियां हैं और ख़ास तौर पर इन मुल्ज़मान को इनके किए की सज़ा किस तरह से मिल पाएगी। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपने वक्त दिया। बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, एक शादी वाले घर में अचानक से झगड़ा शुरू हो जाता है और राहगीर जो लड़के होते हैं वो एक ग्रुप की सूरत में आते हैं और अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं। इस वाक़े का मुकदमा कत्ल की दफ़ा के तहत मकतूल के भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया जाता है, जो इस वक्त ननकाना साहब के रिहायशी हैं। वो इस मुकदमे का मुद्दई बनता है और मौके का ऐनी शाहिद भी बन जाता है। लेकिन जिस पार्टी के साथ ये वाक़या या लड़ाई झगड़ा होता है, उनके भी 9 के करीब अफराद ज़ख्मी होते हैं। वो कहते हैं कि हमारी मुद्दत में मुकदमा अभी दर्ज होना बाकी है। क्या एक ही वकूए की मुख्तलिफ FIR दर्ज हो सकती हैं? उनके बकौल के एक 1 बिलिंग की FIR भी दी गई है इन मुल्ज़मान के खिलाफ। जी बहुत शुक्रिया सलमान भाई, ये बेशक एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन अगर हम इसको लीगल कानूनी पैराए में देखेंगे तो एक वकूए की एक ही FIR रजिस्टर होगी। अब उसमें ऐसा है कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि जो जहाँ से लड़ाई शुरू हुई थी, जो बोन ऑफ कंटेंशन थी, जिनके घर में जिनकी वजह से ये मर्डर हुआ, वो उनका ये क्लेम है कि उनकी सेपरेट FIR होनी चाहिए। तो एज़ पर लॉ जो है वो उनकी सेपरेट FIR नहीं हो सकती। ठीक है। उसमें होता ये है कि अब पुलिस की एफिशिएंसी और पुलिस के पार्ट पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि पुलिस ने जितने भी उस अक्रंस कहते हैं उस वकूए को, सही, उस वकूए में आप देखें कि वो ABC से लेकर Z तक जाएगा कि जो फर्स्ट जिस शख्स से वो वकूआ शुरू हुआ उसके बाद जितने भी मुल्ज़मान आते जाएंगे और जो भी उसमें शामिल होगा एंड तक। अब भाई आपने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो 2 मुल्ज़मान थे, फिर उसके बाद उन्होंने कॉल करके मजीद लोगों को बुलाया, 6 लोग हो गए, 6 लोग हो गए, फिर में कोई 30-35 हो गए। CCTV फुटेजेस भी जी जी उसकी। अभी उस तमाम मुल्ज़मान को उसमें शामिल किया जाएगा और जितने भी उसमें अफेक्टीज होंगे, अब उसमें 2 किस्म के लोग होंगे। एक होंगे एक्यूज साइड की तरफ से कि किन लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड होगी, सही, और दूसरे नंबर पे वो होंगे कि जो कंप्लेनेंट ऑफ द FIR और पर्सन्स इंजर्ड ड्यूरिंग द इंसिडेंट, कि जो लोग दौरान वकूआ इंजर्ड हुए उनकी स्टेटमेंट्स 161 की रिकॉर्ड होंगी और जो कंप्लेनेंट है वो एक ही रहेगा जिस कंप्लेनेंट ने FIR करवा दी। अब इसको थोड़ा सा लीगली समझने की ज़रूरत है, जो अक्सर हमारे दिलों में और हमारे जहन में सवालात आते हैं, चूंकि इस बात को इतना डिस्कस नहीं किया जाता। सही। उसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अगर फ़र्ज़ करें एक बंदे की मुद्दत में FIR दर्ज हो गई, अब अगर उसी अक्रंस में एक मैं भी इंजर्ड हूँ, ये भी इंजर्ड है, तीसरा भी ABCD कोई भी इंजर्ड है, अगर वो उस FIR का कंप्लेनेंट नहीं भी है लेकिन उसका स्टेटस एज ए कंप्लेनेंट ही कंसिडर होगा, सही, उसका मुस्तगीस डेजिग्नेशन एक ही बंदे को मिलेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कल को वो मुस्तगीस सुलह कर लेगा तो मेरी FIR जो दूसरा इंजर्ड है, तीसरा इंजर्ड है या 9 इंजर्ड है, अगर 9 के 9 बंदे इंजर्ड है तो उनका स्टेटस सेम एज पार दी कंप्लेनेंट है। सही, मुद्दई मुकदमा ही कंसीडर होंगे, वो मुद्दई मुकदमा ही कंसीडर होंगे। अच्छा। अब इसमें सूरत अलमिया ये है कि हमारी पुलिस जो है वो चूंकि इल्ला माशाअल्लाह है, जिसकी वजह से हमें CCD बनाने की जरूरत पेश आती है कि हम नाकिस तफ्तीश करते हैं। बिल्कुल। जिस तरह एक डॉक्टर अपने पेशेंट को गाइड करता है, पुलिस वाले को भी चाहिए कि अपने जो उसके बाद साहिल आता है उसको गाइड करे ना। अभी उन्होंने ये डेफिनेटली उनकी एजिटेशन बनती है कि भाई एक बंदे का मर्डर हो गया हमारे अक्रंस में, उसका भाई कंप्लेनेंट बन गया, हमारे 9 लोग इंजर्ड हैं, हमारे MLCs मौजूद हैं, हमें क्यों नहीं हमारी FIR रजिस्टर्ड हो सकती? पुलिस को IO को ये चाहिए कि उन तमाम लोगों की जितने भी इंजर्ड लोग हैं और जो भी उनमें से कोई अपना एप्लीकांट है जिसको हम कंप्लेनेंट बोलेंगे, उन तमाम की 161 की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा, उनको ज़िमनी का हिस्सा बनाएगा। वो जितने लोगों को मुल्ज़मान एडिशनली उसमें रखेंगे
वो तमाम के तमाम उनका स्टेटस उन्हीं मुल्जमान की तरह होगा जो FIR के मुल्जमान। सही। तो इसमें पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिर्फ तफ्तीशी की हद तक होगा, तफ्तीशी ये सब कुछ कर ले। जी जी, देखें जब FIR 161 जो है बयान रिकॉर्ड होगा वो तफ्तीशी लेगा बयान। देखें जब FIR रजिस्टर्ड हो जाती है उसके बाद IG पंजाब भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकता एज पर लॉ। सही। जो IO है उसी की डोमेन है, उसी ने ही लिखना है, उसी ने जिमनी लिखनी है, उसी के ही साइन होने हैं। सही। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि DPO ने ऑर्डर करना है तो होना है, IG पंजाब ने नोटिस लेना है तो होना है, कोई मीडिया पे सारा हलचल मचनी है, वो सारा एजिटेट होना है तो फिर होना है। एक सिंपल डेफिनेटली उन्होंने एप्लीकेशन दी होगी, अगर नहीं भी दी उनको कहें भाई आप अफेक्टी हैं इस मुकदमा की, एप्लीकेशन लेके आए, मैं आप तमाम लोगों की 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूंगा, आप जितने भी ये जो मुल्जमान मौजूद हैं, आप कोई इनमें एडिशन करवाना चाहते हैं मुल्जमान का, आप कोई एडिशनली एविडेंस देना चाहते हैं, आप कोई CCTV फुटेज देना चाहते हैं, उसकी वो फर्द मकबूजगी बनाएगा, फिर वो उनको प्रॉपर्ली गाइड करे। इसमें कोई ऐसा दूसरा नहीं है। रिजवान साहब यहाँ पर बदकिस्मती ये है, जैसे आपने बात किया कि जैसे नाकस तफ्तीश होती है, इसी तरह पुलिस का रवैया और पुलिस से लोग खौफजदा भी बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे वो मुतासरीन ही क्यों ना हो। थाने जाते हुए भी लोग डरते हैं कहीं पर हमारे साथ बदतमीजी ना हो। तो ये भी शरीफ लोग हैं जिनका ये झगड़ा हुआ जो शादी की तकरीब में एक वाकया पेश आया, अब वो बार बार बाजिद हैं और बार बार हमें ये कह रहे हैं कि हमने दरख्वास्त दी हुई है, हमारे कुछ मेडिकल जो है वो आना बाकी हैं, उसके बाद हमारी भी FIR होगी। उन्हें अभी तक इस वकूए को 4 से 5 दिन गुजर गए, अभी तक यही नहीं बताया जा रहा कि इसी FIR में आपके बयानात भी कलम बंद किए जाएंगे। तो ये अब आम पब्लिक को क्या पता, उन्होंने कैसे परसू करना है केस जिन्हें अभी तक ये नहीं बताया जा रहा। अब देखें सलमान भाई, हम छोटे छोटे थे तो तब से ये नाकिस तफ्तीश सुन रहे हैं। तो देखें अभी ये CCD इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि अगर नाकिस तफ्तीश ना होती तो इस तरह जो है वो CCD बना के तो अपने ही साथियों की फायरिंग से कोई भी मुल्जमान हलाक ना होते, बल्कि वो अच्छी तफ्तीश करके उसको कोर्ट में पेश करके उधर से वो डेथ पेनल्टी करवाते। चूंकि इनको पता है कि हमने तफ्तीश सही करनी नहीं है। अब ये जो बिहेवियर का जो या टाइम का, देखें आप भी रात को लेट सोते हैं, हम वकील हैं, हम भी रातों को जागते हैं, हमारे भी मसले मसाइल हैं, मीडिया के भी मसले मसाइल हैं, पुलिस वालों के भी मसले मसाइल हैं, वो हमारे भाई हैं। लेकिन इस बात को इस तरह लेके चलना कि भाई हम नाकिस तफ्तीश इस वजह से करते हैं, हम जागते रहते हैं या हमें टेंशन बहुत ज़्यादा है, हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट के बड़े मसाइल हैं। अब देखें ये दो हरफी बात है ना कि आप उनको कहें कि भाई अब देखें, आप मुझे एक बात बताएं कि एक बंदे ने फायर मार दिया, 324 अट्रैक्ट कर गई, बिल्कुल है, हमला कर दिया, 324 अट्रैक्ट कर गई। अब उस फायर के नतीजे में अगर उस बंदे की हड्डी टूट जाती है, उसका एक्सरे होना है कि वो 337 A1 है, A5 है, F1 है, F2 है, F5 है, वो होना है, एक्सरे में होना है। हाँ, बिल्कुल। अब अगर वो 324 की FIR क्या दर्ज होगी कि नहीं होगी, मेरे भाई MLC आएगा, जो भी आपकी दफात होंगी आप MLC वाली इजाद कर दीजिएगा उसमें। सही। आप इनकी जिमनी लिख के इनका 161 का स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड करें। सही। अगर वो ये एलिगेशन करते हैं कि इसने मुझे जान से मारने की नीयत से फायर मारा, वो मुझे पांव पर लगा, अगर इनकी ये कंटेंशन है फॉर एग्जांपल, तो भाई आप 324 की तो 161 की स्टेटमेंट लिख के 324 तो इसमें ऐड करें ना, ऐड हो सकती। जब आपके उनके MLCs होंगे वो सारी की सारी जितनी भी दफात होंगी वो उसमें ऐड या डिलीट किसी भी सूरत कर सकते हैं। सही। FIR एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है ना जी, और 161 भी हर बंदे का राइट है, जो भी शख्स एक्वेंटेड विद द केस है। सही। किसी भी शख्स के पास उस केस से रिलेटेड कोई भी एविडेंस है, कोई उसका फैक्टी है, कोई उसने राह जाते देखा है, आपकी भी 161 की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। तो जो अफेक्टी ऑफ द अकरेंस है, सही, जो इंजर्ड हैं, तो उनकी 161 की स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ना लिखना कि इनके अभी मेडिकल जो है वो MLCs पेंडिंग है, इनके एक्सरे होना बाकी हैं। तो सलमान भाई ये एक नॉर्मल सी बात है कि थाने जाना है में हर बंदा इसी वजह से डरता है, ना उसको कोई गाइड किया जाता है, ना उसको कोई सहारा देने वाला होता है, और एट द एंड आईओ भी उसको कहता है कि तुसी भाजो, तो 10 दिन बाद आना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रिजवान साहब, अक्सर औकात ये होता है कि जो मुद्दई मुकदमा होता है वो बहुत से लोगों को वैसे नामजद कर देता है, जिसकी वजह से केस जो है वो कमज़ोर हो जाता है।
तादाद बढ़ा दी जाती है। लेकिन इस वकूए में तो सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो मंजर आम पर आई हैं और पता लग रहा है कि काफ़ी तादाद में लोग हैं। तो ऐसे केसेस में क्या मुल्ज़मान को फ़ायदा मिलता है जिसमें मुल्ज़मान की तादाद ज़्यादा होती है? इनको इनके किए की सज़ा दिलवाने में कौन सी मुश्किलात दरपेश आती हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें मेरा जो एजिटेशन होता है, बीइंग लॉयर, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि कंप्लेनेंट से उसी दिन ज़्यादती हो जाती है जिस दिन वो एप्लीकेशन लिखता है। सही। अब एक बंदे का भाई मर्डर हो जाता है, वो एफआईआर लिखने के सेंसेस में नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, वो थाने में जाता वो बड़ा है, तकलीफ में होता है। अब आप देखें कि देखें ये इमोशंस है ना, आपके भी हो सकते हैं, बिल्कुल, मेरे भी हो सबके सकते हैं, ऐसे ही अक्रस हैं। तो किसी के साथ भी हो सकता बिल्कुल है। ऐसे ही। तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कानूनदान भी या कोई जज भी हो ना, जब उसका जाती कोई मामला अपने बनता पे है तो पड़ती है, वो किसी के भी अपने पे पड़ती दिमाग है, नहीं काम ठीक है। करता। बिल्कुल दुरुस्त अब बात। जब वो एप्लीकेशन लिखवाने के लिए थाने में एंटर होता है ना, तो उसकी एप्लीकेशन कौन लिखता है? मैं आपसे मुहर्रर साहब लिखवाते हैं। नो, मुहर्रर भी नहीं लिखता भाईजान। मुहर्रर के पास तो टाइम ही नहीं है। मुहर्रर का आगे जो नायब बंदा, मुहर्रर। कोई नायब मुहर्रर, कोई कांस्टेबल या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर या कोई वायरलेस ऑपरेटर, जिसने कभी जिंदगी में ट्रायल नहीं देखा, कभी जिंदगी में कुछ भी नहीं ना देखा है, ना सुना है, ना भी कभी कोर्ट में एविडेंस दी है, वो उसकी एप्लीकेशन लिखता है और जिस दिन वो एप्लीकेशन लिखता है उसी दिन उस केस का बेड़ा गर्क हो जाता है। वो एफआईआर ही सब कुछ होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। बिल्कुल वही होती है। लेकिन कहा तो इसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। अब इसमें मजेदारी की बात यह है कि इसको लीगली हम ये कहते हैं कि एफआईआर इज जस्ट अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ऐसे ही है कि वो कोई भी दे सकता है। लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट तक की तमाम अथॉरिटीज जजमेंट्स एक्विटल की देखेंगे तो उसमें हमेशा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही डिस्कस होती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, बेनिफिट ऑफ डाउट, एंड तक सुप्रीम कोर्ट तक कोई भी क्लू ना मिले, वो कहते हैं कि भाई पहले दिन ये मौकफ था, बाद में ये एविडेंस आई, बाद में ये आई। बाय कि कुछ चीज़ें वो होती हैं कि जो बीइंग जो है वो वक्त के साथ साथ डेवलप होती जाती हैं। अभी जो करंटली जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स तक की जजमेंट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट की हैं, उनके मुताबिक एफआईआर को एक अच्छी खासी वेटेज दी जाती है। अब दूसरा आपका बहुत अच्छा सवाल है कि सीसीटीवी फुटेज। अब अगर मैं आपको ये आज एक बात आपके तवज्जुह से बताना चाहूँगा कि अगर उन सीसीटीवी फुटेजेस की फ़र्द मकबूजगी, जिसको अंग्रेजी में रिकवरी मेमो कहा जाता है, सही, उसकी रिकवरी मेमो ना बनाई गई, उसको फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ना भिजवाया गया, उनके चेहरों की तस्वीरें साथ उनको मैच ना करवाया गया, उसकी पीएफएसए से रिपोर्ट ना आई, तो आप ड्यूरिंग ट्रायल 1000 दफ़ा भी ये बात करेंगे तो कोर्ट इस बात को नहीं मानेगी कि ये सीसीटीवी फुटेज में ये अक्रंस हो रहा है। सही। जब तक उनकी रिकवरी मेमो नहीं बनेगी, वो रिकवरी मेमो वो यूएसबी में लेके पीएफएसए नहीं जाएगा और वो रिकवरी मेमो ड्यूरिंग ट्रायल एग्जिबिट नहीं होगा। पूरा तरीकाकार जब पूरा तक तरीकाकार adopt नहीं किया जाएगा तब तक नहीं। अब अगर इसकी 1000 सीसीटीवी फुटेजेस हों, जो मर्जी हो जाए, सही, अगर आईओ उसको कलेक्ट नहीं करता, अपनी फाइल का हिस्सा नहीं बनाता, तो सलमान भाई इसमें बिल्कुल भी कहीं पे भी वो जो है वो मुल्जमान के खिलाफ नहीं देखी सुनी जाएगी। हाँ, अगर इसको कड़ी के साथ कड़ी कहते हैं ना कि उसकी चेन को जोड़ते जाएंगे, आईओ विटनेसेस की स्टेटमेंट्स लिखेगा, फिर उनको वो फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए मतलब कि उसको पीएफएसए भेजेगा, फिर उसको अपनी ओपिनियन में लेके आएगा कि ये मुल्जमान थे, ये सीसीटीवी फुटेज में आ गए हैं, मैंने इनकी पिक्चर्स भेजी, साथ में ये वीडियो भेजी, तो पीएफएसए ने भी कहा ये वही मुल्जमान है जो आपने हमें तस्वीरें भेजी हैं। सही। फिर ये मुल्जमान के खिलाफ और इनको जो है वो पनिशमेंट तक, कन्विक्शन तक जो है वो लेके जा सकते। ठीक है, अगर इसमें मुल्जमान की तादाद जैसे कि अगर वो 20 से 25 लोग हैं या 30 से 35 हैं, उनमें से 10 लोग या 9 लोग गोलियां बरसा रहे हैं, तो क्या जिन जिन के नाम लिखे गए उन सबको इनके किए की उतनी ही सजा मिल पाएगी? तमाम चीजें पूरी हो जाती हैं। डेफिनेटली एक वर्ड यूज होता है वाइकेरियस लायबिलिटी लॉ में, सही, कि ईच एंड every person of unlawful assembly is held responsible for the commission act done by one person। अगर 10 बंदे लड़ने के लिए किसी को कत्ल करने के लिए आ गए, मैं आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ, और एक बंदा उनमें से कर रहा है, तो फिर वो दूसरे सारे भी उसको वाइकेरियसली लाइबल होंगे, क्योंकि उनकी भी नीयत यही है कि हम इस बंदे के ऊपर अटैक करेंगे। और जो उनके साथ हैं पीछे जो जी बिल्कुल वही मैं कर रहा हूँ कि अनलॉफुल असेंबली में होता ही है, लेकिन आपने ड्यूरिंग ट्रायल प्रूफ करना होता है, जो कि एक मुश्किल चीज़ है। लेकिन ये प्रूफ अगर हो जाए तो वो लॉ के मुताबिक इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
सही। ठीक हो गया। अब उसमें जो ये बात है कि जी बहुत ज़्यादा मुलजमान हैं, ये मतलब एक वर्ड यूज़ होता है बेनिफिट ऑफ डाउट, वो तो किसी वजह से भी मिल जाता है। सही। अब अगर इस बात से डाउट उनको मिल जाए कि जी ये 20 25 30 लोग हैं, तो ये डिटरमाइन करना कि जी कौन किस पे फायरिंग कर रहा था, किसकी गोली लगी किसकी है। गोली किसको लगी, ये एक मतलब कि वो मुश्किल सी चीज़ है। सही। लेकिन ये मुश्किल नहीं है अगर आईओ अपनी इन्वेस्टिगेशन करे। जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, तो सीसीटीवी फुटेज में तो बड़ा इजीली जो है वो अगर क्लियर उसकी विजुअल्स हैं, उसको अगर फोरेंसिक करवा लिया जाए तो उसमें काफ़ी हद तक आपको जो है वो मदद मिल सकती है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है अगर 20-25 मुलजमान भी हैं, 30 हैं, बड़े बड़े वकूवे हो जाते हैं, 100 मुलजमान भी होते हैं। मॉडल टाउन वकूवे में भी बहुत ज़्यादा मुलजमान थे। लेकिन अगर किसी ने बेनिफिट ऑफ डाउट लेके किसी की कन्विक्शन या क्विटल होनी है, वो तो कोर्ट ने करनी है। सही। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप बीइंग आईओ, बीइंग कंप्लेनेंट, बीइंग आई विटनेस, आप कैसे एविडेंस कलेक्ट करते हो, कैसे आप कोर्ट में लेके जाते हो, कैसे आप कोर्ट में प्रेजेंट करते हो। और अगर आप जज साहब को कन्विंस कर पाते हो कि आप एविडेंस के थ्रू कि जी इन्होंने अक्रंस की है, तो 20-25 की बजाय अगर 40-50 भी हों तो सभी को सजा हो सकती है। सही है। अभी ये कोर्ट्स में से हुई नहीं है सजाएं, ये फौजी अदालतों में हुई हैं सारी। ये कोई ऐसी बात नहीं है। 9 मई के वकूआ जात में कितने लोगों को सजाएं हुई हैं, अब वो कैसे डिटरमाइन हो गया। तो ये चीजें हैं कि आप अगर एविडेंस के थ्रू प्रूफ करते हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। नाज़रीन, पंजाब में सीसीटी का खौफ और दबदबा तो एक बार कायम हुआ, लेकिन जराइम पेशा अफराद ने फिर से उसे हवा में उड़ा दिया है। जिस तरह से 20 मिनट तक लाहौर के इलाका शादरा में फायरिंग की गई, इससे वाज़े तौर पर लगता है कि जराइम पेशा अफराद किसी से नहीं डरते। तो इसके लिए हुकूमत वक्त को कोई हिकमत अमली तरतीब देना होगी ताकि लोग अपनी ज़िंदगी अमन से गुजार सकें और जराइम पेशा अफराद को कानून का खौफ और डर हो, जिसकी वजह से ऐसे भयानक नताइज का सामना न करना पड़ सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।